અરે આવું શા માટે જવું? આટલું બધું ઓવર સપ્લાય, વધારે કરશો તો ફૂટી જઈશ. એ જો ફૂટવાની અણી ઉપર અર્જુન કરગરી રહ્યો છે કે ભાઈ મારી અહંતા મમતા ને સાવ તોડી જ નહીં નાખતો, આટલો બધો વિરાટતા નહીં દેખાડ કે મારી અહંતા મમતા તૂટી જાય. મારી અહંતા મમતા એકોમોડેટ થાય, એ મારી રિક્વાયરમેન્ટ છે. તારી અહંતા મમતા સાથે મારી અહંતા મમતા એકોમોડેટ થાય. આપણે બંને દોસ્ત છીએ, આપણે બંને બનેવીને શું કહેવાય, શાળા બનેવી છે. તો શાળા બનેવી છે, આપણે બંને ગુરુ શિષ્ય છે, તો આપણી અહંતા મમતા એકબીજા સાથે એકોમોડેટ થાય એવા એટલો પાવર સપ્લાય કરીને જે બ્રહ્મ જ્ઞાન દે ને, કોને વાંધો છે? પણ ઓવર સપ્લાય કરે વિરાટ દેખાડવાનો, આ ભગવાન પાસે જસ્ટિફિકેશન છે કે આવું સમજશે તો ભક્તિ થશે. અર્જુન કહે છે ભાઈ સાહેબ નથી કરવી ભક્તિ, પહેલા સ્વસ્થ તમે થાવ પછી હું સ્વસ્થ થઈશ. પહેલા તમે સ્વસ્થ થઈ જાઓ. તેનૈવ રૂપેણ ચતુર્ભુજેન સહસ્રબાહો ભવ વિશ્વમૂર્તે. પહેલા તમે સ્વસ્થ થાઓ. તમે કેમ એટલા અસ્વસ્થ થઈ ગયા? ઉચિંતા મારા રથમાં બેઠેલા મારા દોસ્તાર થઈને તમે વિરાટ કેમ આટલા મોટા થઈ ગયા? કોણે કહ્યું તું તમને? ભગવાન કે છે તે જ કહ્યું તું. એ કે છે ભાઈ ગલતી થઈ ગઈ, હવે નહીં કહું, બીજી વખત સ્વસ્થ થઈ જાઓ, સોરી. એ ઓવર સપ્લાયની વાત છે ને. એમ નથી કહેતો કે અહંતા મમતા ઓછી સમય, આપણી અહંતા મમતા પૂરી સમર્પિત કરશું, પણ એમાં પાવર સપ્લાય જે આવશે ને પાછું સમર્પણ કર્યા પછી, પ્લગ લગાડ્યા પછી, મોબાઈલનો તમે પ્લગ લગાડો અને જો પાવર સપ્લાય વધારે હોય તો શું થાય? ભટ્ટ કરીને ફૂટી જાય મોબાઈલ. એટલે એમાં પાછું કંઈક લગાડવો પડે ને કે જે આવો સપ્લાય થતો હોય વધારે ફ્લક્ચ્યુએશન, તો મારો મોબાઈલ ફૂટી ન જાય અહંતા મમતાનો. એ તો કાળજી લેવી પડશે કે નહીં? એમ આપણે ત્યાં શું કાળજી લેવામાં આવી છે? જે સમર્પણની વાત જે ક્લાઇમેક્સની હતી તેને આપણે પાયામાં મૂકી. પાયા મૂકીને એ અહંતા મમતા આપણી કેન્સલ ના થાય, અહંતા મમતા આપણી ભોટી ન પડી જાય, અહંતા મમતા આપણી ભટ્ટ કરીને ફૂટી ન જાય, અહંતા મમતા આપણી પડદા તરીકે ન રહી જાય, થોડી કંડક્ટર રહે, બેડ કંડક્ટર ન થઈ જાય. એ બધાનો આપણે ઉપાય શું સોચ્યો? કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસીસા પરામતા ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા તત્સિદ્ધ્યય તનુવત્તજા. મારા અહંકારથી જેને હું મારી પર્સનાલિટી સમજુ છું એને હું તારામાં જોડીશ. મારી મમતાથી જેને હું મારો વિત્ત સમજુ છું તેને હું તારી સાથે જોડીશ, તેને હું તારી સાથે શેર કરીશ. અને તું મારી અહંતા મમતાને શેર કરતો થા તો આપણે એકબીજાને સાંખી શકશું. એ આખો આપણો ભક્તિનો પ્રોગ્રામ છે. ધ્યાનમાં આવ્યું ને? અહંતા મમતાને શેર કરવાનો, નહીં કે અહંતા મમતાની જેમ મોટા બિઝનેસવાળાઓ નાના બિઝનેસને ખાઈ જાય એમ આપણને ખબર છે કે એની અહંતા મમતાનો કોઈ પાર નથી. કેમ કે ભગવાન શું કે છે? સૂરજ પણ હું છું, ચાંદ પણ હું છું, પહાડ પણ હું છું, પથ્થર પણ હું છું, દૈત્ય પણ હું છું, દાનવ પણ હું છું. અરે ભાઈ આટલી મોટી અંતા મમતા, મારી અંતા મમતા તો ક્યાંક ને ક્યાંક ખોવાઈ જશે ને. આટલી મોટી અંતા મમતા અમારી સાથે નહીં વાપર, થોડીક રિડ્યુસ કર. એટલી અહંતા રાખતું કે તું મારો ઠાકુર છે, હું પણ એટલી અહંતા રાખીશ કે હું તારો સેવક છું. તું એટલી મમતા રાખ કે આખો બ્રહ્માંડ તારો છે નહીં, આ ભક્તનો ઘર મારો ઘર છે. હું પણ એટલી મમતા રાખીશ કે મારા ઘરમાં જે કંઈ છે તે તારી સેવા માટે હાજર છે. બસ એ પ્રોગ્રામ છે આપણો ભક્તિનો, જે આપણે નથી સમજી રહ્યા આજની તારીખમાં પુષ્ટિ માર્ગમાં. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? કેમ કે અસદવાસનાઓનો સદવાસનાઓનો એવો મેનિપ્યુલેશન થઈ રહ્યો છે કે આપણો ધર્મ જે છે સેવા ધર્મ એ અસદ ધર્મ થઈ ગયો. જે મુદ્દો હું બતાવવા માંગુ છું તે આ છે. એટલે સેવા રૂપી આપણી જે રિલેશનશિપ છે એના પાયામાં ત્યાંથી શરૂઆત થઈ રહી છે. જેમ વિવેકાનંદ કહેતા હતા કે જ્યાં ઇન્ડિયન વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી ખતમ થાય છે ત્યાંથી ઇન્ડિયન ફિલોસોફી સ્ટાર્ટ થાય છે. એમ જ્યાં શાસ્ત્રની નવધા ભક્તિ પૂરી થાય છે આત્મસમર્પણમાં, ત્યાંથી આપણી પુષ્ટિ ભક્તિ શરૂ થાય છે. કે સૌથી પહેલા આત્મસમર્પણ કરો. કેમ કે આત્મસમર્પણ કરશો તો તમારી અહંતા મમતાને તમે સરખી રીતે ટ્યુનઅપ કરી શકશો એની અહંતા મમતા સાથે. એ આખો પ્રોગ્રામ હતો. એ પ્રોગ્રામમાં આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ, એક વાત ધ્યાનથી સમજો, કે બ્રહ્મ
થી આપણે વિખૂટા પડ્યા, બ્રહ્મથી આપણે વિખૂટા પડ્યા. હેવ યુ એવર થોટ વાય? એમ કહેવાય છે સૂરજથી આપણે વિખૂટા પડ્યા એનું કારણ કે સૂરજની સામેથી કોઈક એક સ્ટાર સૂરજ જેવો પાવરફુલ પસાર થતો હતો. આપણે સૂરજમાં રહેતા હતા અને ઉચિંતો આપણને એટ્રેક્શન આવ્યો. જેમ ચંદ્રમાં ઉગે અને દરિયાને એટ્રેક્શન થાય છે ને, લહેરો ઉછાલા મારે, એટલે સૂરજના પદાર્થે ઉછાલો માર્યો એટલે એટલો ઉછાલો માર્યો કે આપણે બહાર આવી ગયા. બ્રહ્મના આગળથી કયો સ્ટાર? કોઈ નહીં. કોઈ એવો સ્ટાર નથી કે જે બ્રહ્મને આગળથી પાસ થયો હોય અને તેના કારણે ઉછાલાને કારણે આપણે વિચલિત થઈને બહાર આવી ગયા. ફટાકડામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પેલો કોઠીમાં દિયાસલાઈ લગાવો, દિયાસલાઈ લગાવવાથી બધા વિચરણ કરીને બહાર આવી જાય છે. દિયાસલાઈ કોણે લગાડી? બ્રહ્મની કોઠીમાં દિયાસલાઈ લગાડી કોણે કે વિચરણ આપણું થયો? કહે છે શું આપણે ત્યાં? બ્રહ્માનંદ. એ બ્રહ્માનંદ બ્રહ્મને પોતાનો આનંદ માણવો હતો, એણે એટલે એનામાંથી પોતાનામાંથી વિચલિત કર્યો. બ્રહ્મે પોતાનો આનંદ માણવા માટે આપણને વિચલિત કર્યો. તેથી આપણા ભક્તિના પ્રોગ્રામમાં આપણે બ્રહ્માનંદને નથી માનતા, ભજનાનંદને માનીએ છીએ. અને મહાપ્રભુજી પાછી એક બહુ સુંદર વાત જયેન્દ્રભાઈ કહે છે કે લક્ષ્મી જે છે ને એ બ્રહ્માનંદ છે. તો રાવણ અને શિશુપાલને લક્ષ્મી ગમતી હોય છે, આપણને લક્ષ્મી નથી ગમતી. મારી વાઈફની વાત નથી કરી રહ્યો, લક્ષ્મી તો ગમે છે, આપણને ભજનાનંદ ગમે છે. એટલે આપણા અહંતા મમતાને આવી રીતે ધૂમ ધડાક કરીને ઉડાવી દે એવો બ્રહ્માનંદ આપણને ભાઈ સાહેબ નથી ગમતો. અર્જુનને નહોતો ગમ્યો બ્રહ્માનંદ, એ યશોદાને નહોતો ગમ્યો, તેથી આપણને ભજનાનંદ નથી ગમતો. આપણને શું લાગે કે જે કોઈ આપણને ભજનાનંદ બ્રહ્માનંદની વાત સમજાતો હોય, આસુરાંશતા ન હો બુધા. કેમ કે પાછો કાં તો રાવણનો દીકરો હશે કાં શિશુપાલનો દીકરો હશે. રાવણને સીતા ઉપર મન ચાલતું હતું, શિશુપાલને રૂકમણી ઉપર મન ચાલતું હતું. આપણે શા માટે બ્રહ્માનંદને મેળવીએ? ફોર વોટ ગુડ રીઝન? વાય? આપણે ભજનાનંદ મેળશું. ખ્યાલમાં આવ્યું? આપણે એટલે બ્રહ્માનંદથી થોડોક, હવે બ્રહ્મનો આનંદ બ્રહ્મનો જ આનંદ છે, બ્રહ્મનો જ છે, બીજા કોઈનો આનંદ નથી. છતાં પણ એ બ્રહ્માનંદ પ્રત્યે આપણો ભાવ એવો થઈ ગયો છે, સમજવા માટે આપણે તૈયાર હોઈશું, પણ એ બ્રહ્માનંદને માણવાના મોડમાં આપણી અહંતા મમતાને એની સાથે જોડવા આપણે તૈયાર નથી. બ્રહ્માનંદ માણવા આપણી અહંતા મમતાને જોડવા જશું ને તો પેલો ઉડી જશે. આપણી અહંતાનો મમતાનો બલ્બ જ ભુટ્ટ કરીને ઉડી જશે. કેમ કે બ્રહ્માનંદ આપણી અહંતા મમતામાં સમાઈ શકતો નથી. આની બાય ડિફોલ્ટ એટલી કેપેસિટી નથી કે બ્રહ્માનંદને ઝીલી શકે. રત્નાકર તેથી જ બહુ સુંદર વાત કહે છે કે બૂંદતા વિલે હે બૂંદ વિવત વિચારી કી. આવું બધું કરશો તો અમે જે બિંદુ છીએ તારા, અમારું બિંદુ પણ ખતમ થઈ જશે. બૂંદતા વિલે હે બૂંદ વિવશ વિચારી કી. જો આટલો બધો તું એક્સપાન્શન કરશે તારા આનંદનો બ્રહ્માનંદ, તો નેટ રિઝલ્ટમાં અમારું શું થશે કે અમારી જે બૂંદતા છે, બૂંદ હોવાની અહંતા છે, એ નષ્ટ થઈ જશે. દયારામભાઈ એટલે જ રડી છે કે જલને શો જલનો સ્વાદ, જન જુદો રહી પ્રામે આહલાદ, સેવો શ્રી કૃષ્ણ કૃપાલ. આખો એ મેજર ઇસ્યુ છે કે આપણી અહંતા મમતાને આપણે ભટ્ટ કરીને ઉડાવી નથી દેતી. આપણી અહંતા મમતાને મર્યાદા ભક્તિની માફક ઘોટી નથી પાડવી કે હર વખત આપણને એમ જ લાગે કે એ જ ગુનેગાર, એ જ પાપ ક્ષમા કરનારો છે ને આપણે તો ગુનેગાર જ છીએ ને આપણે તો ત્યારે જ પાપી થઈ ગયા કે જ્યારે મારા વડવાએ આવું કામ કર્યું. અરે ભાઈ, વડવાએ કામ કર્યું તો એને દંડ આપે કે મને દંડ આપે? ધારો મેં કઈ ખોટું કામ કર્યું તો મને દંડ આપે કે બકરીને મારે? પણ પેલું ઝાંખી પડી જતી હોય છે. આટલો બધો ઊંચે વિચારવાથી ભગવાનને આપણી જે અહંતા મમતા છે ને, જેમ સૂરજના પ્રકાશમાં બધા તારલાઓની લાઈટ ઝાંખી પડી જતી હોય છે, તેમ આપણી અહંતા મમતા આવી બધી વિચારનાથી ખતમ નથી થતી, પણ ભોટી પડી જતી હોય છે કે પછી તો આની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવું કેવી રીતે? આપણે કંઈ ચમકવા માંગતા હોઈએ તોય ન ચમકી શકીએ.
નો ગુડ ફોર નથિંગ જેવું થઈ જાય. એક પણ તારો દેખાતો નથી સૂરજ ઉગતાની સાથે. કે ભાગી જાય છે તારા? કોઈ ભાગી નથી જાય. બિચારાની લાઈટ ભોટી પડી જાય છે. એમાં આપણી અહંતા મમતા ભોટી પડી જાય છે. એની અહંતા મમતાનો વિચાર કરતા એ આપણે ભોટી નથી પાડવી. આપણી અહંતા મમતાને, આપણી અહંતા મમતાને ભુટ્ટ કરીને ફોડાવી નથી દેવી. ઇન્ટેક્ટ રાખવી છે, ઇન્ટરેક્ટિવ મોડમાં રાખવી છે. તેનું નામ ભક્તિ છે. તેથી આત્મસમર્પણનો આપણો મોડ જે છે એ ભજનાનંદનો છે. બ્રહ્માનંદાત સમુદ્રત્ય ભજનાનંદ યોજને લીલાયા યુજ્યતે સાતુર્ય વિનિરૂપ્યતે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કહે છે કે બ્રહ્માનંદથી કાઢીને આ તમારી અહંતા મમતાને ભજનાનંદમાં ઇન્વોલ્વ કરવા માટે આ આખો ભગવાનની નિરોધ લીલા પ્રકટ થઈ છે. તેથી ભક્તિ, જે ભક્ત છે એ ભક્તની અહંતા મમતા, સમર્પિત અહંતા મમતા હશે ને તો એ ભક્તિ નિરોધમાં કલ્મિનેટ થશે. અને સમર્પિત અહંતા મમતા નહીં હોય તો કોઈક ને કોઈક સદવાસના, અસદવાસના, કાં તો અહંતા મમતાને ભોઠી પાડવા માટે અથવા તો એને સબોટેજ જ કરવા માટે આવી જશે તમારા ભીતર. ભક્તિ કરતા કરતા ભક્તિ કરતા કરતા કાં તો તમારી અહંતા મમતા ભોટી પડી જશે, જેમ આજની તારીખમાં વૈષ્ણવોની અહંતા મમતા ભોટી પડી ગઈ. ક્यों भोटी पड़ गई? कोई वैष्णव को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें तो ठाकुर जी प्रसन्न होएगा. वो तो बालकन की मोनोपोली है. अरे 2 लपड़ मारे, ऐसी कैसी मोनोपोली कोई की हो सके? अहंता ममता तुम्हारी है कि बालक की है? तुम्हारी अहंता ममता भोटी क्यों पड़ गई इतनी तुम्हारे ठाकुर की सेवा करने में? हम पे ठाकुर कैसे रीझेगो? इतनी भोटी अहंता ममता. ये पुष्टि मार्ग को प्रोग्राम नहीं है. ये तो गुंडा लोगन ने धूतक फैलाने के लिए फैलाया हुआ भक्ति को प्रोग्राम है. ये पुष्टि मार्गी भक्ति को प्रोग्राम नहीं है. पुष्टि मार्गी भक्ति को प्रोग्राम यह है कि मेरी अहंता ममता मैं तेरे साथ शेयर कर रही हूं, तेरी अहंता ममता तू मेरे साथ शेयर कर. दोनों अपन शेयर होल्डर हैं. वो ईव होगी वाकी पार्टनर, मैं तो ईव भी शेयर कर रहा हूं ना. दारागार पुत्र आप्त वित्ते सबको मैं शेयर कर रहा हूं तेरे साथ. और तेरी सारी विरजलीला को मैं शेयर करूंगा. मेरे सारे ग्रह संसार को तू शेयर कर. देखो ये म्यूचुअल पार्टनरशिप की बात है कि मेरे ग्रह संसार को तू शेयर कर और तेरी जो व्रज की लीला है, व्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी, वो तेरी व्रज लीला को मैं शेयर करूंगा. वो मेरी नहीं है व्रज लीला, क्योंकि मैं हतो भी नहीं वह वक्त. तेने तो पूंजी जमा करके रखी है ना. जब तू मेरे यहां आएगा वाह कैपिटल का लाभ मुझको भी मिलेगा ना. और जब मैं अपने घर में सेवा करूंगा तो मेरे घर में जो भी कुछ है मेरी अहंता के हेडिंग के नीचे, मेरी ममता की हेडिंग के नीचे वाकू तू शेयर कर. मेरो घर, मेरो बच्चा, मेरो पैसा, मेरो धंधा, मेरी अक्ल, मेरी दोस्ती, मेरी दुश्मनी वाकू तू शेयर कर. हमारे यहां यही लिए गोस्वामी में सेवा की पुस्तक में लिखे हुए होते कि कौन से घर के साथ अपना क्या रिलेशन है. वो रिलेशन ऐसे नहीं होता कि कौन के घर के बालक ने हमारे क्या इंसल्ट किया या क्या हमारो क्या रिस्पेक्ट किया. ये नहीं. वह घर के साथ अपना रिलेशन कैसे है कि वह घर को बालक आवे तो वह को आरती की सेवा देनी, ज्यादा सेवा नहीं देनी. वह घर को बालक आवे तो आरती की सेवा नहीं, ठाकुर जी के चंदपस भी वाकू देने, और ज्यादा नहीं देने. और ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो तो कैसे काउंटर. वो हम पुस्तकन में लिखे हुए है हमारे घर की पुस्तकन में कि वह घर के बालक आवे तो उनको श्रृंगार करने हो तो श्रृंगार करवे देने, पर पौड़ावे नहीं देना ठाकुर जी को. अपने खुद के हाजिर रहना. अब प्रॉब्लम यह कि पौड़ावे मुखिया जी, बालक पौड़ावे ही नहीं. और बालक जावे तो अपन क्या, हमारी पुस्तक में लिखे हुए है कि हमारे यहाँ आपके घर वाले इनको पौड़ाने की छूट नहीं है. तो वो ठाकुर जी भी घबरा जाते हैं कि भाई याकू ना क्यों पड़ी, वाकू बेचारे को पौड़ाने की इच्छा हो रही है. मुखिया पढ़ावा के बजाय तो बालक पढ़ावे. अच्छा ना. नहीं नहीं, हमारे घर की चौपड़ी में लिखे हुए कि पढ़ावे की सेवा हम आपको नहीं दे, मुखिया करे. ठाकुर जी भी कंफ्यूज है कि भाई कौन सी तरह की अहंता ममता के कौन से मूड में इनके साथ में जुड़े हूं. ये मुखिया भीतर यहाँ पढ़ा सके और एक बालक जो सचमुच में पढ़ाना चाह रहे है भाव सुई. क्योंकि पढ़ाने की सेवा ऐसी सेवा है कि वो वैष्णव के सामने नहीं हो माइंडेड, जहां में आपको वैष्णव को पटाने की इच्छा हो. आरती करने की सेवा ऐसी इच्छा है कि जहां में वैष्णव पट जाए.
क्योंकि बड़े भाव भक्ति से आरती करे ना, वैष्णव को धन्य धन्य लगो, महाराज ने आरती उतारी, निरंजन मिशे रूप धरवा। पौढ़ाने की सेवा में तो कोई नहीं होगा, तो कोई वैष्णव को पटाने के लिए तो करेगा नहीं, करेगा बेचारा कोई भी बालक, तो वाकू वाह ठाकुर जी पे कुछ भक्ति भाव आया लिखे, पर वो चौपड़ी में लिखे कि वाह घर के साथ अपने ये रिलेशन नहीं है करके मुखिया जी पढ़ा है, पर वो बालक नहीं पढ़ा सके। तो अपन समझ सकें कि अपने दोस्ती को, दुश्मनी को, सबको प्रभु शेयर करे ना। मतलब वाकू क्या लेना देना, वाकू क्या लेना देना कौन से घर से तुम्हारा क्या रिलेशन है, पर वाकू कब लेना देना नहीं है, जब श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा होए ना, तब वाकू लेना देना नहीं है। वाकू लिए सब समान है। निवृत्त मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयोपि यरुस्मरणात् स्त्रिय उरोगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त दियो वयमपि ते समा समदृशोंग्री सरोज सुधा। जो ध्यान लगा के तेरे को मन में समाधि में रियलाइज कर रहे हैं, जो दुश्मनी करके तुमको मारना चाह रहे हैं, जो तेरे बाहु तेरे सीना पे आकृष्ट होकर तेरे से भेंटना चाह रही हैं, और हम तेरी भक्ति करना चाह रहे हैं, तेरे लिए सब समान है, तेरे लिए सब समान है। वो कौन से पुरुषोत्तम के लिए? श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा। अपने घर को ठाकुर ऐसे करे ना, को कहना चुप बैठ, हमारा वह घर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। जैसे अपन अपने बच्चा को रोके कि नहीं, बच्चा समझे ऐसे कोई के साथ भागते तो अपन क्या कहेंगे, नहीं वहां नहीं जानो, अपना उनके साथ संबंध अच्छा नहीं है। तो बच्चा को समझ ही नहीं पड़े कि संबंध बिगड़ो क्यों तुम्हारा। बच्चा समझे कुछ कोई बड़े इनको लफड़ा है जहां मैं अपने पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। अपन कैसे अपने बच्चा को रोकते हैं, कैसे अपने ठाकुर जी को रोकते आना चाहिए कि भैया तुम होगे, तुम्हारे लिए सब समान होंगे, पर हमारे घर में तुम्हारे लिए सब समान नहीं है, क्योंकि हमारी अहंता ममता में जो हमारे समान है उनको तुम समान मानो, जो हमारे लिए समान नहीं है उनको तुम विषम मानो। जब वह तरह से तुम अपन दोनों एक दूसरे की अहंता ममता को शेयर करेंगे, तब तो ये रिलेशन हेल्दी होएगा। क्योंकि तुम अपनी वाह पुरुषोत्तम वाली अहंता ममता को लाओगे, कैसे यहाँ जो द्वेष कर रहे हो वो भी समान है, और जो ऐसा चाह रहे हो काम भाव से वो भी समान है, और जो शांत भाव से ध्यान कर रहे हो वो भी समान है, और महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ भक्ति कर रहे हो वो भी मेरे सभी समान है। तो सभी समान है तो फिर वो हमारी वो पहलवान जो हिडम्बा थी, वही प्रश्न आएगा ना कि फिर सभी समान है तो यार मैं जाके वहां करूंगी क्या? 16,000 समान है तुम्हारे, तो वहां में मेरी काउंटिंग कहां होएगी? तो जब तक मुंह को मेरी काउंटिंग नहीं पता चले मैं ऐसा सट्टा खेलूं क्यों? बाकी बेचारी की बात तो सच्ची है। जो इतना बड़ा तामझाम है, वहां में मेरा प्लेसमेंट कहां होएगा मुझको पता नहीं है, वह जॉब के लिए अप्लाई क्यों करूं? पता तो चले ना कि प्लेसमेंट कहां होएगा, तब तो जॉब के लिए अप्लाई करूं। अब 16,000 में सब समान होए, और 16,000 के अलावा भी सब समान होए, द्वेष करने वाले भी समान है, ध्यान करने वाले भी समान है, त्यार वहां में मेरो प्लेसमेंट कहां? अपनी अहंता ममता या तरीके को इतना बड़ो धूम धड़ाका प्रकाश को एनलाइटनमेंट को झील नहीं सकेगी, झीलेगी तो फट जाएगी। यदि कभी सप्लाई भी की हो ना, तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण वो फट जाएगी अपनी अहंता ममता। अपने को अपनी अहंता ममता को फाड़नी नहीं है, भोटी नहीं पाड़नी है, अपनी अहंता ममता को वाके साथ प्रोग्राम के वाइज जोड़नी है करके अपन ब्रह्मानंद सु समुद्रत्य, ब्रह्मानंद को बैक ऑफ द माइंड रखें कि हाँ ये हकीकत है, वो हम भी जान रहे हैं, जानते हैं हम भी जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को पहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि जैसी मेरी अहंता वह प्रोपोर्शन में तू तेरी अहंता रख, जैसी मेरी ममता वह प्रोपोर्शन की तू तेरी ममता को यहाँ कैपिटल लगा। ये अपनों में अननेसेसरी ज्यादा कैपिटल लगा के सारा बिजनेस तू पचा जाए वो स्वराज पाल की तरह, ऐसा लफड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, अपने को जेन्युइन ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी होनी चाहिए कि मैं अपनी अहंता ममता ज्यादा लगा के तेरे व्यर्थ में लीलान को कभी बेचूंगा नहीं, तेरी भक्ति को कभी बेचूंगा नहीं, तेरे स्वरूप को कभी बेचूंगा नहीं, तेरी इंटीग्रिटी को कभी बेचूंगा नहीं। तू जा डेलिकेसी से मेरे घर में आया है, वह डेलिकेसी से मैं तेरे घर में निभाऊंगा। मैं अपनी अहंता ममता कोई अननेसेसरीली इतनी बूस्ट नहीं करूंगा कि तू कोई बेचने लग जाऊं। मैंने एक दूसरे के बिजनेस को पचा जाने की ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अहंता ममता को, वो अपने यहां भक्ति को वो
પ્રોસિજર નહીં હતો, अपनो इक्वल शेयर को प्रोसीजर હતો. ભાઈ તું બી થોડી अपनी હંતા મમતા લગા, थोड़ी मैं अपनी हंता ममता लगाऊं, चलो स्टार्ट करो. कृष्ण एंड कंपनी. यस. તમે દયારામજીનો કોટ મને ફેર કરો છો, તો કેમ દયારામજી એમ કીધું હતું કે પછીના જેઓ સેવા નહીં કરે છે, ખાલી સ્મરણ ને કીર્તન કરે છે? એમને એવા માજના જોયા હશે ને. હું એ કહી રહ્યો છું, હું પણ કહી રહ્યો છું, કેમ કે માજના એવા દેખાય છે. Dayaram was not Vallabhpanthi. Be absolutely clear about it. Dayaram was very balanced, self-composed Pushtimargi person. The great personality of Pushtimar. Rare personality, I would say. He is a rare personality. Sometimes I love Dayaram more than I love Ashtachap. Because Dayaram is a poet who sings our sentiment. While all those old poets of Ashtachap, they are singing the sentiment of Vraj Bhakta. They are not singing the sentiment of we, Pushtimargi. So suppose we have to make some dialogue with our Thakurji. Whose song we can sing before our Thakurji? Suppose if you sing the songs of the Ashtachap and all those poets, it's not your dialogue, it's their dialogue. But when you sing Dayarams, you are singing your own dialogue. You can feel that it is come, not only it has come from the heart of the Dayaram. You sing it and you will feel that, yes, it is coming from my heart too. I have also same feeling. So in that respect, I consider Dayaram perhaps more than the Ashtachap. As far as the question of Leela Gan is there, they are greater. In matter of Leela Gan, they are much, much greater. But in matter of singing our sentiment, because if you refer Sivdas ji, he will depress you. हाँ पतितन को टीको, कौन पतित खलकामी. अरे भाई, that story is over now. I have made an Atma Samarpan. Now how long I will sing? हाँ पतितन को टीको, मौसम कौन कुटिल खलकामी. That's a long back drop chapter. Now come forward, sing some such thing which you may like to sing and you may enjoy. That yes, it's your sentiment you are singing. So Dayaram Bhai only provides that. I am a fan of Dayaram. He is a great person. He is a rare phenomena in Pushtimar. या लिए बात ध्यान से समझो कि एनलाइटनमेंट को जो स्वरूप है, वह स्वरूप में भक्ति के लिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि लय होवे है प्रपंच को. पर कौन सा लय? लय के कई मोड हैं. डिसॉल्व हो जानो, मिंगल हो जानो. ख्याल में समझ में आई? जैसे रसगुल्ला चाशनी में डिसॉल्व नहीं होवे, चाशनी में मिंगल हो जाए. अंदर खुद के चाशनी भर ले, खुद को टेस्ट चाशनी में थोड़ा सा डाल दे. ऐसे रसगुल्ला गुलाब जामुन की तरह अपनी अहंता ममता जो है ना, भगवान की कृपा की चाशनी में रसगुल्ला की तरह होनी चाहिए कि थोड़ा मासू रस एब्जॉर्ब करे, थोड़ा अपनो टेस्ट वो वहाँ में डाले, वो डिसॉल्व नहीं हो जाए. जैसे दूध को पानी में मिलाओ तो दूध और पानी दोनों पता नहीं चलेगा क्या भयो क्या नहीं भयो. वह तरीके को नहीं, वह तरीके को लय जो है वो भक्ति है. और या तरीके को अहंता ममता को, ये जो कर्टन होने को नेचर है ना, वो लीन हो जाए, पर खुद अहंता ममता लीन नहीं होवे. ये भक्ति के प्रोग्राम के तहत महाप्रभु जी ने 9वें स्कंद में भार दे के समझाई हुई बात है कि अपनी भक्ति को ये मूड होना चाहिए. ये यदि भक्ति को मूड होएगो
तो वो निरोध में डेवलप हो सके है। क्यों? क्योंकि निरोध के पाछे भी कई तरीके के मॉडल हो सके हैं। ऐसो निरोध कि तुमको खत्म ही कर दिया जाए, ऐसो निरोध कि तुमको तुम ही नहीं रहने दियो जाए। वो दयाराम भाई पाछे रोवे कि मुने गमे ना चतुर्भुज था। वो चतुर्भुज मत बना, मुझको चतुर्भुज अच्छा होना अच्छा नहीं लग रहा है। व्रज वालू रे वैकुंठ नहीं जाऊं, मने गमे ना चतुर्भुज था। वो दयाराम भाई यही लिए रो रहे हैं। देखो अपन अपने ठाकुर जी कह सकें भाई व्यर्थ में हमको ऐसे सारूप्य काय को तू प्रदान करे कि तू चतुर्भुज और मैं भी चतुर्भुज। अरे मेरे यार 2 हाथ रहने दे, उन मेरे जो 2 हाथ हैं उनसे तू सेवा लेने तैयार कि नहीं? तू तेरे 4 हाथ नहीं 1000 हाथ रख, वो मेरे 2 हाथों में तेरे 2 हाथ है कि नहीं? बस उतना बता दे ना खुलास, तो सारी बात सफाई हो जाए। मुने गमे ना चतुर्भुज था। ये जो आपको प्रोसीजर है अपने भक्ति के सेंटिमेंट को, ये भक्ति के सेंटिमेंट को अपन यहां कहना चाह रहे हैं कि वो निरोध वो हो सकेगा तो वाके लिए होंगे वाके 1000 हाथ, होंगे वाके 4 हाथ, पर पहले तू अपने हाथ को मेरे हाथ में दे दे और मेरे हाथ से मैं तेरे हाथ को पकड़ लूं तो अपन दोनों एक दूसरे में निरोध हो जाएंगे कि नहीं? तेरा हाथ मैंने पकड़ लियो, मेरा हाथ तेने पकड़ लियो, दोनों हाथ पकड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के, दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ लियो, दोनों एक दूसरे से निरुद्ध हो जाएंगे। वो कब डेवलपमेंट हो सकेगा? कि जब तेरे भी हाथ होंगे और मेरे भी हाथ होंगे। मेरे शायद जो है वो शारीरिक हाथ होंगे, जड़ हाथ होंगे, तेरे आनंदात्मक होंगे, आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि। सर यस, वही तो बात है कि मैं आनंद को खोज रहे हूं और तू मेरी जड़ता को खोजने लग जा तो बस बात बन गई, अपनी जोड़ी जन गई, जोड़ा मेला दोनों मिल गए। क्योंकि तैने ब्रह्मानंद मानने के लिए तो जड़ प्रकट कियो ना, तो मैं तो को मना नहीं करूं कि तू ब्रह्मानंद मत मान। मेरे हाथ पकड़ने में तू तेरा ब्रह्मानंद मान, पर तेरो हाथ पकड़ने में मोकू भजनानंद मानवे दे। आखो इश्यू ये है, ये आखो अपने भक्ति के प्रोग्राम के तहत तू ब्रह्मानंद माने वहां मोकू क्या ऑब्जेक्शन है? देखो रासलीला को स्वरूप समझो कि भगवान को एक हाथ एक गोपी के कंधा पे है, दूसरा हाथ दूसरे गोपी के कंधा पे, वहां पे कौन गोपी को ऑब्जेक्शन हो सके? पर सारे दोनों ही हाथ कोई के कंधा पे दर्द है और मैं रास में भी पार्टी लूं और मेरे कंधा पे हाथ भी नहीं, तो फिर वो बाकी बात सच्ची है ना कि फिर तो यार फिर मैं काय को वहां में मेरा प्लेसमेंट क्या? फिर जब साथ में नाचने के लिए आए हैं तो एक हाथ तो मेरे पास होना चाहिए कि नहीं? और मैं अपना हाथ धरूं वहां के लिए तेरो कंधा भी तो होना चाहिए। और कंधा पे हाथ रखो कि हाथ में हाथ डालो, जो भी रास को बॉडी लैंग्वेज हो है वह बॉडी लैंग्वेज में अपन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नाच भी रहे और साथ में हाथ है ही नहीं, वो अपने को अलाउड नहीं है। अब दूसरे के साथ वाके 1000 हाथ हैं, वो कौन से हाथ से कौन के साथ नाच रहे वहां में, वो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। अपना ये बिजनेस है कि मेरे साथ तो निरुद्ध है कि नहीं। जो मेरे साथ निरुद्ध है वह को नाम साधन निरोध है। और जब मैंने तेने मेरे हाथ में तेरा हाथ डालियो और जब मैंने तेरे हाथ में मेरा हाथ डालियो तो वो फल निरोध हो जाएगा, क्योंकि मुझको आनंद मिल रहा है, तो को ब्रह्मा, मुझको भजनानंद मिल रहा है, तो को ब्रह्मानंद मिल रहा है। सीधे से पैटर्न समझो भक्ति को, अपने आप को पैटर्न कितना खूबसूरत महाप्रभु जी ने सोचे हुए कि जब मैं तेरे हाथ में हाथ डालूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? भजनानंद मिलेगा। तेरी कोई लाचारी होगी कि तू ब्रह्मानंद के अलावा कोई दूसरा आनंद नहीं मान सकता, क्योंकि तेरे को तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि जड़ में आनंद नहीं ले सके, तो तू जड़ में तेरा ब्रह्मानंद ले। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे हाथ में तेरा हाथ होना चाहिए जासू कि हम भजनानंद मान सकें। ये आखो निरोध की प्रक्रिया है। माने यही लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कैसो निस्साधन फलात्मायम व्यक्तिर भगवतो नृप प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले तत एवास्ति नैश्चिंत्यम ऐहिके पारलौकिके। हम तेरे 1000 हाथ से हाथ मिलाने जाएंगे तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि पता नहीं कौन से हाथ से हाथ मिलानो, कौन से हाथ में गदा निकले, कौन से हाथ में चक्र निकले, हाथ मिलाने जाए वही में हाथ कट जाए। रिस्क है, रिस्क है।
पर तुको पता है ना कि हमारे कौन से हाथ से तू कौन सा हाथ खा लिए तेरो, वो हाथ हमारे से मिला ले, बस बात बंद कही अपनी। भजनानंद हमको मिल जाएगा, तुको तेरा ब्रह्मानंद ले तो रहे। ये आखिर निरोध की प्रक्रिया है। तो निरोध की प्रक्रिया में यही लिए कहे कैसो आत्मन सह शक्ति भीर दुर्विभाव्या भी प्रपंचे क्रीडनम हरे। प्रपंच में वो आके जा वक्त क्रीड़ा करे है। प्रपंच में क्रीड़ा करने के लिए वो मॉडल क्या है कि जैसे तुम हो वह तरीके की मैं क्रीड़ा तुम्हारे साथ कर रहे हूं, वह तरीके की क्रीड़ा कर रहे हो, वह तरीके को वो रेसिप्रोकेट अपने को कर रहे हो, तो अपन भी वहां में निरुद्ध हो सकेंगे। और स्वभावस्य अन्यथा भावो नवै शक्य कथंचना अतस त्रिविध जीवेशु त्रिविधा भगवत कृति। तामस को तामस रिस्पॉन्स देनो, सात्विक को सात्विक रिस्पॉन्स देनो, राजस को राजस रिस्पॉन्स देनो, निर्गुण को निर्गुण रिस्पॉन्स देनो। वह तरीके को रिस्पॉन्स देने की तेरे पास यदि सामर्थ्य हो तो निरोध लीला प्रपंच में संभव हो सके। और हर वक्त तू वही सामर्थ्य वापरते हो कि ओवर पावर सप्लाई करके और हमारी अहंता ममता को फोड़ ही देते हो या भोटी पाड़ देते हो, तो अपनी चले तो कुछ नहीं, पर बूंदता विले हैं बूंद भी बस बेचारी की। तो अपन जो चाह रहे हैं भक्ति के प्रोग्राम के तहत, अपन जो चाह रहे हैं निरुद्ध होने के प्रोग्राम के तहत, अपन जहां तरीके को एनलाइटनमेंट के सपना देख रहे हैं वो या तरीके को एनलाइटनमेंट है। वह तरीके के एनलाइटनमेंट नहीं है कि अपने अहंता ममता को बल भी फट करके फूट जाए, ना वह तरीके को एनलाइटनमेंट है कि अपने जुड़तो रहे तो अभी दिखना बंद हो जाए। ये म्युनिसिपालिटी वाले बहुत वक्त बत्ती बंद करना भूल जाए रोड साइड की, वो अपने को पता भी नहीं चले हो कि बत्ती बुझाना भूल गए। वो तो शाम को पाछी पता चले कि अच्छा ये जल रही थी। दिन में सूरज उगता ही वो दिखती बंद हो जाए, ऐसी भोटी पड़ जाए। वो अहंता ममता मुझको नहीं चाहिए। अपने को ऐसी अहंता ममता चाहिए कि जहां में अपनी अहंता ममता आपको दिखे। कौन सी? दासोहम, दासोहम कृष्ण ममा। वह तरीके की मेरी अहंता ममता मुझको दिखे, तेरी अहंता ममता से ट्यून अप होके, वो अपने भक्ति का प्रोग्राम है और वो अपने निरोध का प्रोग्राम है। मुझको लगे कि न तो अपन निरोध स्कंद पे आज पूरी तरह से पहुंच सकेंगे, और जहां तक सवाल है मुक्ति स्कंद को, वो तो अभी आशा बहुत दूर है। पर इन ब्रीफ में एक बात समझा दूं कि या 8वें आख्यान में गोपाल दास जी ने प्रमाण निरोध, प्रमेय निरोध, साधन निरोध, फल निरोध, अवांतर माने फल निरोध, और इतना ही नहीं, और सारी बात जो है वो यहां कही है। और ऐसे ही वो कभी टीका मेरी छप जाएगी, अभी शायद शरद बाबा सेमिनार कर रहे हैं, तब तक आप देख सकोगे आनंद से। अहंता ममता को निरोध, तेरी अहंता ममता को मेरी अहंता ममता में निरोध, मेरी अहंता ममता को तेरी अहंता ममता में निरोध, माने साधन निरोध और फल निरोध। ये सारे मॉडल बता के मेरी पुष्टि को तेरे में निरोध, तेरी पुष्टि को मेरे में निरोध, मेरी मर्यादा को तेरी मर्यादा में निरोध, तेरी मर्यादा को मेरी मर्यादा में निरोध होना चाहिए। माने सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उच्यते। तू तेरी अखंड पूर्ण प्राता रखते भय मेरे घर में आते हो तो तेरी मर्यादा को मेरे में निरोध हो गया। मैं अपनी सारी सांसारिकता रखते भय तेरी सेवा के लिए तैयार हो पाए हो तो मेरी अहंता ममता को तेरे में निरोध हो गया। वह तरीके को एनलाइटनमेंट को आखिर प्रोग्राम है। और वह तरीके को एनलाइटनमेंट के प्रोग्राम में जो 9वाख्यान है, वहां में अपने को हर वक्त ये प्रॉब्लम आया कि हमें मुक्ति की क्या बात है, ये जीनोलॉजी वर्णित करी है, तो अपने ध्यान में से एक बात चूक जाए है। और वो बात क्या है? महाप्रभु जी को प्री सपोजिशन देखो। महाप्रभु जी कह रहे हैं 11 स्कंध में मुक्ति की वार्ता है। स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य दिजे स्वरूप स्थितिर मुक्ति। हर गोस्वामी बालक जो गुसाई जी को बावा है, बेटी जी है, उनके एक एक स्वरूप हैं और उनके एक एक स्वरूप में वो स्थित हैं और वो उनकी मुक्ति है। ये मॉडल लेके चले हैं ये गोपाल दास जी के सब स्वरूपस्थ हैं कि नहीं। और या के लिए वो कह रहे हैं कि नित्य प्रति क्षणु क्षणु समरिए,
श्री वल्लभनो परिवार रे रचना, क्योंकि हर परिवार के मेंबर को एक स्वरूप है। कोई ने कोई ठाकुर जी को रिझायो, कोई ने कोई ठाकुर जी को रिझायो, कोई ने कुछ करे, कोई ने कुछ करो। हर बालक अपने अपने ठाकुर की सेवा में अपनी अपनी बहुजिन के साथ जुड़ो भयो है। वो हर बालक अपनी अपनी बहुजिन के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए, दारागार पुत्राप्त वित्ते सबको समर्पण करके ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए। यासु ज्यादा मुक्ति क्या होनी चाहिए? भागवत खुद क्या है कि भगवदीयत्व नहीं, वो परिसमाप्त सर्वार्थ था। भागवत बहुत सुंदर एक बात क्या है कि या लिए तेरी भक्ति को एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ भक्ति के प्रोग्राम को जा वक्त आदमी जिए, वह वक्त संसार की जो आग है वो जलावे नहीं, ऐसी बात नहीं है, जलावे। तो वो संसार में की जलाने वाली आग को, यहां तक भागवत के कि 3 वक्त सुबह शाम रात 3 वक्त जले, वो 3 वक्त जलते भाई भी वो अपने आप को जल्यो नहीं माने, क्योंकि तेरी भक्ति वाकू इतना पाछो एसी सिस्टम से प्रोवाइड करती रहे ठंडक, वो जलने को वो सहन कर ले और जहन से ले कहे, क्योंकि तेने ही वो भगवदीयत्व नहीं, वो परिसमाप्त सर्वार्थ था। तो ये सारे बालक हैं जो अपने भगवदीय होने की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। या लिए मुक्तिमपि स्वयमेव आसादिता मुक्तिमपि नो आद्रियन्ते, भगवदीयत्व नहीं, वो परिसमाप्त सर्वार्थ था। हर बालक जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा में जुटे हुए है वो मुक्त है। या लिए नवमाख्यान जो है वो मुक्ति को आख्यान है, क्योंकि मुक्ति की परिभाषा में यह बात आ गई कि स्वरूपस्थ होनो वो मुक्ति है। और अपनो सच्चो स्वरूप क्या है कि अपन ठाकुर जी के बन जाएं, ठाकुर जी को अपनो बना सकें। वह लेवल में वो अपनो स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया कृत हुता से संसार राज काजे जोड़िया जन उच्चावच नरनार। माने गोपीनाथ जी के बेटी जी के लिए वार्ता में ऐसा आवे प्रसंग कि शादी हो रही थी, तब वो बेचारे विधवा थे, बाल विधवा थे। तो उसने गोसाई जी के सामने जिद की हो कि मेरा पति कहाँ है, शादी मेरी क्यों नहीं करी। गोसाई जी ने कही तो एक काम करना, ये नवनीत प्रिया जी घर में बिराज है, तेरा पति ये है। वो गोपाल दास जी कह रहे हो कि नवनीत प्रिया जी ने रीझव्या, वो ऐसी सेवा में जुट गई नवनीत प्रिया जी के कि उनको कभी बाल वैधव्य सतायो नहीं, कभी बाल वैधव्य सतायो नहीं। उनको बस गोसाई जी ने बस सरस वचन उच्चार मात्र, संशय न परिहार। वो बाल विधवा वा जमाना में सेकंड मैरिज अलाउड हतो नहीं कि पाछे मैरिज करवा देते। अब वो भोलेपन में उन्होंने आके पूछो कि सबके ब्याह कर रहे हो, मेरो ब्याह क्यों नहीं कर रहे हो, मेरो पति कहाँ है। गोसाई जी ने कही कि ये तेरो पति है नवनीत प्रिया जी। उनने पकड़ लियो नवनीत प्रिया जी को, श्री नवनीत प्रिया जी ने रीझव्या, वो वकी मुक्ति हो गई। तकलीफ नहीं देते हो वैधव्य विवाह बेटी जी को, ऐसी बात नहीं है। पर वो भागवतकार खुद क्या है कि सारी तकलीफ को झीलते भय वो भक्ति वाको ऐसो ठंडो करती रहे, वो रेलिश करे। क्या तकलीफ तो पार्ट ऑफ द गेम है। अरे क्रिकेट खेलने तो पसीना नहीं आवे, क्रिकेट खेलने तो टांग नहीं टूटे, बॉल कैच करने में अंगली नहीं फट जाए, बहुत सारी हो तो पार्ट ऑफ द गेम है। पार्ट ऑफ द गेम समझ के वाकू रेलिश करे और क्रिकेट चालू रहे। ऐसी कितना दौड़ना पड़े क्रिकेट में, यहां से वहां व्यर्थ में, हर बॉल को फेंकने के साथ दौड़ना पड़े बेचारे इनको, जैसे कोई जानवर हो। वो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है तो गेम को पार्ट है तो दौड़ेंगे मैदान में। वहां कोई ऐसे नहीं सोचे कि बैट्समैन तो खड़े ही भयो है और हमको दौड़ना पड़ रहा है। अरे भाई, जब बॉलिंग को तुमने लियो है साइड, तो एक आदमी बॉलिंग करेगा, वो भी दौड़ रहे हो, और तुम बॉल पकड़ने के लिए दौड़ो, बॉल फेंकने के दौड़ रहे हो, और वो भी पाछा कुछ तो दौड़ ही रहे हो कि नहीं, रन करने के लिए। तो दौड़ा दौड़ी को खेल है, सब दौड़ रहे हैं, अपन भी दौड़ रहे हैं। हमें घबराने की बात क्या है? पार्ट ऑफ द गेम समझोगे ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने दौड़ने का मतलब संसार में दौड़ना, संसार के सुख दुख में दौड़ना, वो तो दौड़ते रहेंगे अपन। कोई वक्त बॉल छटक जाएगी, कोई वक्त अपन कैच भी कर लेंगे, बहुत सारी बातें। जब अपन कोई खेल में लगे हुए हैं तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर। वह खेल में वाकई लिए अपने मन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हुए वो सारे जो हुए कि कैच को छूट जानो, कैच को पकड़नो, कोई वक्त कैच को पकड़ते पकड़ते गिर जानो हेडलॉन्ग, वो सारी बात को पार्ट ऑफ द गेम समझ के अपन खेलते रहेंगे ना, तो स्पोर्ट चलती रहेगी, वो लीला चलती रहेगी, तुम्हारे घर में भी चलती रहेगी। ब्रह्मांड में चले कि नहीं चले, हु केयर्स फॉर इट। अपने घर में चलनी चाहिए लीला, अपने घर में वो लीला चलनी चाहिए। ब्रह्मांड में चलती है वो ब्रह्मांड नायक विचारेगा, अपने घर में चलेगी ना वो अपने को विचारना है।
अपन यदि विचार रहे हैं तो अपन मुक्त हैं। ये आखो प्रोसीजर उनने इन नटशेल नवमाख्यान में अपनाया है। वो पढ़ के देखोगे ना तो सबके वो यही तरीके का वर्णन आ रहे हैं कि कौन ने क्या, सबके पास एक एक ठाकुर जी है, सब अपने अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे भय। ये आखो वो है, इन सब में जो मूल बात कहने की है, अभी कल मैं यहां से जा रहे होते ना, तब अचानक मुझको एक गजल बन गई, कार में, मोबाइल में बन गई। तो वो गजल मैं अपने या मूड की सुनाना चाह रहा हूं तुमको, मुझको भी मजा आ गया। अपनी हस्ती में भी एहसास तेरा होता है। हस्ती मेरी है और एहसास तेरा हो रहा है। बेखुदी ये हो मेरी क्यों तेरा गुमा होता है। बेखुदी मने मुझको अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ये पॉसिबल हो सके, तो तेरो गुमा क्यों हो रहे हो कि तू है मेरे साथ। बेखुदी हो मेरी क्यों तेरा गुमा होता है। अरे विद्या विद्या हरे शक्ति माये इवन विनिर्मिते ते जीवस्य इवन नान्यस्य दुखित्वंचाप्यनिशिता। तो बेखुदी मेरी हो सके, अब हमें तेरो गुमा क्यों हो रहे हो कि तू मुझको अब मूर्ख बना रहे हो। बात समझ में आई। बेखुदी हो ये मेरी क्यों तेरा गुमा होता है। ये भक्ति की बात है, तुमको समझ आती है, लीला की बात है। ये तेरी जलवागिरी या फितरते निगाह मेरी, ये तू सर्वत्र दर्शन दे रहे हो, वाक्य कारण ऐसे हो रहे हो कि मेरी आंख भक्ति वाली हो गई है, वाली है, तो को देखना चाह रही है। ये तेरी जलवागिरी माने तू दर्शन दे रहे हो सब जगह, वो तेरी जलवागिरी है। या फितरते निगाह मेरी, मैं भक्तिमय निगाह से जब देख रहा हूं तो तू ही दिखाई दे रहे हो। मैं तू सब जगह है, वाक्य कारण सब जगह दिखाई दे रहे हो कि मैं तो कुछ सब जगह देखना चाह रहे हूं, या के लिए तू सब जगह दिखाई दे रहे हो। बात ख्याल में ही ना। ये तेरी जलवागिरी या फितरते निगाह मेरी, आईने में भी तेरा क्यों नक्श बयां होता है। कांच में देखूं तो मुकुट मेरा चेहरा के बजाय तेरा चेहरा क्यों दिख रहे हो। अपनी अहंता, अपनी ममता, अपना चेहरा देखने को कांच है ना, वहां में तेरा चेहरा क्यों दिख रहे हो। दासो हम क्यों दिख रहे हो, श्री कृष्ण शरणम मम क्यों दिख रहे हो, तेरा चेहरा क्यों दिख रहे हो। ये तेरी जलवागिरी या फितरते निगाह मेरी, आईने में भी क्यों तेरा नक्श बयां होता है। ये दुई का है भरम, ये दुई का है भरम। या तो ये मुझको द्वैत का भ्रम हो रहा है, तेरे मेरे में द्वैत है। ये दुई का है भरम कि यक्तना होने का मलाल। यक्तना मेरे मने जैसे स एकाकी न रमते, ऐसा मैं एकाकी रमन नहीं कर पा रहा हूं, बाकी मुझको कुछ घबराहट हो रही है, या के लिए तू प्रकट हो रहा है कि ये दो द्वैत को भ्रम हो रहा है कि मैं एकाकी रमन नहीं कर पा रहा हूं, या लिए तू मुझको चाहिए। ये दुई का है भरम कि यक्तना होने का मलाल। इश्क क्या शय है, नेहा रूह में वो होता है। ये इश्क जो है ना, बाकी सामर्थ्य तो देखो कि जो बाहर बैठे हुए हो तो वो मेरे अंतरात्मा में आके बैठ गए। पहले बाहर बैठे हुए हो तो इश्क क्या शय है, नेहा रूह में वो होता है। नेहा यानी छुप जाए है, अंतरात्मा बन जाए। तो ये काय के कारण बन रहा है, ये अपन ने लीला स्टार्ट करी या तरीके की, जो अपन ने मॉडल देखो कि अपन अपनी आत्मसमर्पण कर रहे हैं वाकू, वह आत्मसमर्पण के तहत वाकू अपन डिमांड कर रहे हैं कि भाई तू भी तेरे कुछ समर्पण मत कर, पर हमारी अहंता ममता सु एडजस्ट तो हो। जब तू एडजस्ट हो जाएगा हमारी अहंता ममता सु, ते भक्ति को खेल चल सकेगा। वो भक्ति निरोध पे भी जाएगी, भक्ति निरोध पे जाएगी, वहां में लय जो है अहंता ममता को अस्फूर्ति, प्रपंचा स्फूर्ति जैसो लय होएगो कि अपनी अहंता ममता में वाक्य अलावा और कोई स्फुरित नहीं होएगा। निरोध को ये मॉडल आ जाएगा। और
अंत में तो हर चीज को स्वरूप विलय होना है। तो वो तीसरो लेवल को एनलाइटनमेंट है कि जा वक्त अपने को लगे कि सब बल्ब जो है वो फूट गए, अब खाली वही एक बल्ब को ओवर सप्लाई चल रहे है, वो अपने लिए निद्रा है। जामे सु केदार राग में सु पाछे वो शुरू हो है साइकिल। जा साइकिल में अपन ये कहें कि बंधु श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करे वा प्रकट्या परम दयाल। वो वह केदारा जो रात्रि को, जो वो प्रलय की जो रात्रि है, वह प्रलय की रात्रि में जो सहस्त्र परिवत्सर सु जो सोतो भयो जीव है, वह को रात बितानी कैसे, वह को केदारा राग है। बंधु श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करे व प्रकट्या परम दयाल। प्रकट को मतलब बाहर आना हो, प्रकट कटे आवरण, कट को मतलब हुआ कंसीलमेंट, प्रकट का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट। तो जगह प्रकट्या परम दयाल, एक वो ऐसा परम दयाल प्रकटे कि जासु वो जो आवरण है वाक्य और मेरे बीच में अहंता ममता के, वाकई कोई बड़ी अहंता है बॉम्बास्टिक, मेरी कोई छोटी अहंता है बॉम्बास्टिक, वो वाकई अहंता इतनी बॉम्बास्टिक मेरे से जुड़ना नहीं चाहे, मेरी छोटी अहंता वासु जुड़ने में घबरा रही है कि भोटी पड़ जाऊंगी या फूटी जाऊंगी। वो दोनों अपन एक दूसरे की अहंता ममता को या तरह से एडजस्ट कर लें कि मेरी अहंता ममता तेरे सामने प्रकट हो जाए कैसी है, तेरी अहंता ममता मेरे सामने प्रकट हो सके, ऐसी अहंता ममता बन जाए। तो ये जो है वो श्री वल्लभ नो परिवार अपन सभी हैं। और नहीं प्रकट हो रही है ना, तो ये खाली महाप्रभु जी के वंश में कोटा रिजर्वेशन के कारण वल्लभ को परिवार नहीं होवे, वह लिए आश्रय को पद गा के अपन यहाँ समाप्त करेंगे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के। पूरा नहीं कर सक्यो पर जितना हो सक्यो उतने की मजा अपने को लेनी चाहिए, क्योंकि वल्लभाख्यान है, श्री महाप्रभु जी को आख्यान है, आश्रय लीला वाकी है।